So today, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we have to finish the Tableau, all the charts and everything. So we have almost done everything. लेकिन एक Gantt chart पिछले सेशन में याद होगा कि रह गया था. So we needed the data for that, proper data for that. So any data which contains some duration, like जैसे for example delivery of parcels or delivery of orders, that's a duration. And any logistic operation जैसे supply chain के अंदर बहुत सारे durations आते हैं कि order आपने किया, फिर आपको manufacturing मिल गई, या फिर warehouse में replenish कब हुआ order. So duration के उसके लिए क्या कहते हैं, to see the duration over different dimensions, उसके लिए Gantt chart है. तो Gantt chart does not exactly mean कि जो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बनाते हैं that is also a Gantt chart, लेकिन यहाँ पे मतलब उसका थोड़ा सा कुछ और भी है. ठीक है. So ये वो डेटा है जो कि this is the file which is coming inbuilt with Tableau. So if you go to C:/my Tableau repository, let me just open up another one. So it will be in C:/, अगर आपके users और Windows में I think documents and my Tableau repository, okay, and data sources. तो इसके अंदर ये सारे वो पड़े हुए हैं जो कि इनके बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड्स भी बने बनाए आपको मिल जाएंगे. इसी तरह जिन बच्चों ने Tableau Prep इंस्टॉल कर लिया है, तो you are going to see a Tableau Prep repository as well. I don't know किसके अंदर data sets, I think ये तो खैर मैंने खुद बनाया था. So that's the stuff here. ठीक है. So बहरहाल ये sample superstore data is a very good data set. It consists of several thousands of rows, almost 10,000, and the column names are all representative of the typical sales जो कि होनी चाहिए. तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर हमारे पास I got this the shipping date and the order date. So here we can have the time duration difference to visualize the Gantt charts. ठीक है. So let's go to Tableau. So let me just close this. ठीक है. Oh, sorry, let me just share it again. So I hope all of you can see this. So let's connect to the data. So here in this case, I have the Excel file. ठीक है. So Excel file पे connect करेंगे तो this is ये कहाँ है यार? So let me just okay, so it should be here. Okay, here is the data set. अच्छा, अब इसके अंदर the point is कि Excel file के अंदर हमारे पास तीन वो आ रहे हैं. If you see this, I got 3 tabs. Like this is the tab for orders, which contains the typical data. This is the tab for people. तो हमारे पास people का जो है वो sorry about that. Come on. So we have the information for people from the orders tab. Orders tab में people कौन से हैं वो let's find this out. This is the customer. ठीक है. I think this is the only one जो कि contains the data for people. बहरहाल यहाँ पर जो region के हिसाब से ना, region, I got the data for region. तो region जो है ना वो यहाँ पर कौन से specify हुआ है? I got this south, east, west and north in America. ठीक है. So I got 4 regions. ठीक है. हाँ, central भी है, लेकिन यहाँ पर जो हाँ, east, west, central and south. So these 4 regions are there. और उसके अंदर जो है ना region managers यहाँ पे defined है. ठीक है. So that's a separate tab और a worksheet. तो यहाँ पर जो है ना वो हम यहाँ पर हमें basically इसको merge कर सकते हैं. We want to merge this with the orders data. समझ आ रही बात की ओवर द रीजन कॉलम हम मर्ज कर सकते हैं. अगर हम कॉलम क्रिएट करना चाहे तो इसको ज्वाइन किया जा सकता है Tableau Prep के थ्रू. इसको ज्वाइन किया जा सकता है, लेकिन खैर अभी हमने ज्वाइन किया नहीं है. और रिटर्न्स के अंदर ऑर्डर आईडी समथिंग जिसपे हम ऑर्डर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. दिस यू कैन ट्राई आउट विद Tableau Prep. ठीक है. इट्स अ वेरी बेसिक ऑपरेशन टू डू देयर. दिस कॉलम कैन बी जॉइंड विद दिस शीट कैन बी जॉइंड अक्रॉस द रीजन कॉलम, क्योंकि रीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. और रिटर्न्स की जो शीट है
that can be joined across this order ID column. समझ में आ रही बात की? तो रिटर्न्ड का कॉलम ऑर्डर्स में आ जाएगा और इसी तरह जो रीजनल मैनेजर का कॉलम है वो भी ऑर्डर्स के अंदर आ जाएगा। सही है, समझ में आ रही बात की? ये जॉइन आप लोग उसमें ट्राई आउट करें टेबलू प्रेप के अंदर, यू कैन ट्राई इट आउट योरसेल्फ। यहाँ पे बहरहाल ये है कि अगर आप एक्सेल के अंदर आते हैं, सॉरी टेबलू के अंदर, तो हेयर क्योंकि वो 3 है ना, तो वो कह रहा है कि बेसिक आपने कौन से ड्रैग करने हैं, ठीक है? तो ये मेरा प्राइमरीली मेरा मकसद फिलहाल तो ऑर्डर्स का है, तो आई कैन ड्रैग दैट, लेकिन आई कैन ऑल्सो ड्रैग पीपल। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाएगा। अब कनेक्शन में मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पर है, वो कह रहा है कन्वर्ट टू यूनियन। तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ यूनियन केस। यूनियन का तो हमने देखा था ना, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो तो there are 2 files which have exactly the same column names and I can union them to form one data set. So this is not the case for union, this is the case for join. सही है? तो join जो अगर आपने करना है वो फिर आप वहां पे join कर, लेकिन बहरहाल मैं इसको join कर सकता हूँ कि somehow उसका आपस में लिंक है, तो हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा लिंक उसका किस तरह से आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे रिटर्न्स आ गया तो बाय डिफॉल्ट उसको पकड़ेगा, तो आई विल लीव इट एज इट इज और आई विल जस्ट गो टू दिस शीट 1। So when you go to this sheet 1, तो you can see here कि tables में तो ये आपका orders का आ रहा है, ठीक है, और people है and then you got this returns। तो ये तीनों उसने import कर लिए क्योंकि आपने तीनों किए थे। अब connection उसने जो है इस तरह से बनाया नहीं है because we have not formed the connection ourselves। बहरहाल इसका आप देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं। कनेक्शन वो ऑटोमेटिक बना देगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि मैंने रीजन और रीजनल मैनेजर के लिए टोटल सेल्स को देखना है, सो वो कनेक्शन आपस में टोटल इकट्ठा बना देगा। इट विल बी एबल टू कनेक्ट बिटवीन द 2 फाइल्स टुगेदर विदाउट यू डूइंग एनी जॉइन। तो ये हम बाद में देखते हैं फिलहाल, ठीक है? सो ओवरऑल गैंट चार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि गैंट चार्ट इज समथिंग व्हिच इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू प्ले विद दैट। सो इट्स द चार्ट व्हिच इज हियर। अच्छा, यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल गैंट चार्ट बनाने के लिए लेट्स से कि आई वांट टू एनालाइज द delays that are occurring across several dimensions। यहाँ पर जो dimensions है वो हमारे पास like sub category और shipping mode, सही है? तो if you see the sub category, these are the sub categories of the sales item जो कि हमारे पास है। तो ये categories बनी हुई, तो इनके क्रॉस हम delays देख सकते हैं कि shipping date और order date के difference निकाल के कि वो कितना delay आया, वो Gantt chart पे आपको नजर आ सकता है। इसी तरह अगर आप shipping mode देखें, I got these 4 shipping modes, जो कि जैसे आप कह लें कि फर्स्ट क्लास में अर्जेंट, एक्सट्रीमली अर्जेंट, सेम डे, सेकंड क्लास, स्टैंडर्ड क्लास, जो कि नॉर्मल लाइक 3 days डिलीवरी और 4 days, इस तरह का मामला है। तो ये हमारी प्राइमरी डायमेंशंस इसकी हैं। बहरहाल इसको गैंट चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले यू गॉट द फर्स्ट डेट जो कि हमने ड्रैग करनी है, विच इज द ऑर्डर डेट। और ऑर्डर डेट जो है ना वो बेसिकली आप इसको करेंगे वीक नंबर के ऊपर, because we got to make it very granular in nature, ठीक है? वीक नंबर करने के बाद let me just drag the subcategory here, so you can see already कि अब एक छोटा सा ना वो एक चीज ऐसा बनना शुरू हो गई है जो कि हम एनालाइज कर सकते हैं क्रॉस डिफरेंट डायमेंशंस। और अगर मैं शिपिंग मोड डालना चाहे तो शिपिंग मोड भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? सही है, समझ में आ रही बात की? अच्छा, अब जो है ना आई हैव टू क्रिएट दिस क्या कहते हैं, दिस डिफरेंस वेरिएबल। तो डिफरेंस वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आई विल डू दिस क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड एंड आई विल एज द डिले। डेटा सेट अगर आपने टेबलू इंस्टॉल किया ना तो उसके अंदर ही है, मैंने बताया ना, उसमें देख लें आप, ठीक है? वैसे मैंने अपलोड नहीं किया। तो इसको आई विल डू डेट डिफ और आई थिंक दिस इज डे और ऑर्डर डेट। ये खुद ही उठाता है उसको, आपने सिर्फ वो नाम लिखने हैं। द कॉलम नेम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ऑरेंज ब्रैकेट्स, ठीक है? द कैलकुलेशन इज वैलिड, जस्ट लेट मी क्रॉस चेक फ्रॉम हियर। ऑर्डर डेट एंड देन शिपिंग डेट, ठीक है? इज इट डेट और डेज? डेट, ठीक है। सो आई जस्ट नेम इट एज द डिले। अब ये यहाँ पर यू गेट द डिले वेरिएबल हियर, सही है? ये है ना, यहाँ पे जस्ट गो हियर एंड से क्रिएट द कैलकुलेटेड फील्ड। ये पैरामीटर्स हमने पिछली बार क्रिएट किए थे बिनिंग में, जो हमने पिछला एनालिसिस किया था पाकिस्तान के डेटा सेट का। तो वो भी यहाँ नीचे की तरफ आ जाते हैं, वो बॉटम लेफ्ट के ऊपर।
तो यू आर फ्री टू यूज दोस बिन्स और पैरामीटर्स जैसे आप उसको क्रिएट करें। और वैसे ये वो कॉलम्स के ऊपर जो दूसरे कॉलम्स बनाए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड अ कैलकुलेटेड फील्ड हियर। दिस इसकी जो लैंग्वेज है वो एक्सेल की तरह की नहीं है। पावर बीआई में जो डैक्स की लैंग्वेज है दैट इज वेरी सिमिलर टू द एक्सेल फंक्शंस जो कि हम यूज करते हैं, क्योंकि दे आर बोथ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इसकी जो लैंग्वेज है इसके अंदर मैंने देखा था कोई रैंडमाइज का कोई फंक्शन नहीं है। देयर इज नो फंक्शन फॉर रैंड कि मैं रैंडमाइज करके कोई नंबर जनरेट करना चाहूँ। जैसे हमने टारगेट्स जनरेट किए थे पावर बीआई में, आपको याद होगा, टारगेट वेरिएबल जनरेट किया था रैंडमाइज करके, तो यहाँ पे रैंड का फंक्शन मुझे नहीं मिला। तो इट्स नॉट दैट मच सिमिलर टू द डैक्स लैंग्वेज ऑफ पावर बीआई। बहरहाल ये कोई इतना भी चक्कर नहीं है। अच्छा, तो अब मैं डिले को मैं ड्रैग करता हूँ साइज के ऊपर। सही है, आई विल ड्रैग द डिले टू साइज। सो हियर आई कैन सी के ज्यादा डिलेज कौन से हैं, लेट मी पुल दैट एज द एवरेज डिले। तो मैं इसको एवरेज डिले कर देता हूँ। सो दिस मेक्स इट मोर कन्वीनियंट। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ग्रैनुलर आ रहा है, तो आई नीड टू पुट अ फिल्टर ऑन इट। यानी ये मेरे ख्याल में 8-10 साल का डेटा है, तो लेट मी जस्ट मेक इट क्लोज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर देता हूँ। तो इन ऑर्डर टू पुट द फिल्टर हेयर, I'll just drop down from here and I will click on filter and I will click range of dates. So instead of taking 17, so let me say ke I will take from January 2020 to the final one. It's still very granular, so let me take it from 2021. ये उसको वैसे अपडेट कर रहे हैं उसके साथ साथ ही। So now it seems a bit better. तो ये 1 साल के लिए थोड़ा सा आ गया ताकि मैं उसको उस फ्रेम में राइज कर। आप देख रहे हैं कि वो खुद ही यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो फिल्टर जब आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन फिल्टर किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको उसके अक्रॉस देखने के लिए आई कैन जस्ट ड्रैग दी शिपिंग मोड टू द कलर। ठीक है, तो ये अब मैं ऑब्वियसली यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। एंड आई कैन जस्ट डू द स्टैंडर्ड एंटायर व्यू। तो ये मुझे अब आपके शिपिंग मोड्स के क्रॉस थोड़े से डिफरेंसेस नजर, अभी भी काफी ज्यादा वो ग्रैनुलर हुआ है। ओके, जस्ट सो ये अब आपको क्या बता रहे हैं, डिले इज दी साइज। तो ज्यादा डिले किसके हो रहे हैं, डिलेज तकरीबन ज्यादातर जो आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड। हाँ, तो आई कैन जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर, द सेम थिंग। तो यू कैन सी हियर कि कम डिलेज किसके आ रहे हैं, ज्यादा डिलेज किसके आ रहे हैं। तो आई कैन पुट अ फिल्टर ऑन द कैटेगरीज एज वेल, अगर आप इसको वो थोड़ा सा मजीद वो करना चाह रहे हैं, या इसको रीजन के क्रॉस आप देखना चाह रहे हैं तो रीजन के क्रॉस देख लेते हैं। लेट मी जस्ट पुल अप द रीजन हियर। So the delays are almost the same across all the regions. There is no उसमें कोई significant pattern नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर डिलेज आ भी रहे हैं तो कॉपियर्स के सबसे कम आ रहे हैं, कॉपियर्स के डिले सबसे कम है। और सबसे ज्यादा बड़े बॉक्सेस किस चीज के आ रहे हैं, ऊपर एक्सेसरीज अप्लायंसेस वगैरह के आ रहे हैं। बहरहाल दैट इज द पर्पस ऑफ द गैंट चार्ट। गैंट चार्ट को आप इस तरह से बना सकते हैं। ये खैर हमने यहाँ पे गैंट को इफेक्टिवली सिलेक्ट किया नहीं है, लेकिन दिस इज आल्सो अ गैंट चार्ट, जो पर्पस इसका यही है। ठीक है, तो यू कैन सी दैट जो डिले यहाँ पर आ रहा है क्रॉस द शिपिंग मोड्स। अगर आप इसको फिल्टर थोड़ा सा मजीद करना चाहें, लेट्स से कि मैं 1 जून से लेता हूँ, तो आप थोड़ा सा मजीद ज्ञान, लेकिन अब तकरीबन आप देख रहे हैं कि जहाँ पे डिलेज नहीं आ रहे वो हमारे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। कि कॉपियर्स का आप देखें कि मिनिमम डिले आ रहा है, मशीन्स का मिनिमम डिले आ रहा है, और जो भरे हुए हैं सारे वो यहाँ के हैं, एक्सेसरीज अप्लायंसेस वगैरह। बुक केसेस के देखें डिलेज कम आ रहे हैं, चेयर्स के डिलेज भी आ रहे हैं ज्यादा। और वो आप देख लें कि किस क्लास के क्रॉस आप देखना चाह रहे हैं, तो वो आप देख लें। यू कैन ऑल्सो सी द डिलेज अक्रॉस, yeah, you can see them across the states. So I'll just remove this. तो ये खैर बहुत सारी स्टेट्स हो गई हैं, तो ये आपको they have punched it up into just a single one. So let me just hide the title here. और ये है इसका प्रेजेंटेशन मोड। So here you can go to the presentation mode. अब ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल
जो सबसे कम डिलेज आ रहे हैं वो मिसिसिपी वगैरह की तरफ आ रहे हैं, मिसौरी, अक्रॉस द डिफरेंट वो उसमें जो खाली खाली जो है ना वो कम डिलेज वाले, ज्यादा डिलेज वाले जो कैलिफोर्निया में डिलेज सबसे ज्यादा हैं और न्यूयॉर्क में डिलेज सबसे ज्यादा है, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज यहाँ पे एक्टिविटी वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और टेक्सास, दीज आर द 4 स्टेट्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिलेज जो कि अक्रॉस पूरे टाइम पीरियड पे ऑकर कर रहे हैं पिछले 6 महीने में 2021 के, और बाकी स्टेट्स के अंदर एक्टिविटी आपकी हसल एंड बसल कम है। सो दैट गिव्स अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। आपको वहां से चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन बिकॉज दिस इज द प्रेजेंटेशन मोड तो इसलिए सही है जी, क्लियर है। सो दिस इज इट। अब दूसरी चीज जो हमने देखी थी लास्ट टाइम वो ये थी कि दिस इज द गैंट चार्ट। अब दूसरा ये है कि बुलेट चार्ट हम देख रहे थे तो उसमें इतना भी वो नहीं था, इतना मजा नहीं आ रहा था देखने में, बिकॉज द एट्रीब्यूट्स वर नॉट दैट मच कूल। तो अब इसके अंदर अगर मैं करूं, चले आप मुझे बताएं बुलेट चार्ट जो हमने किया था लास्ट टाइम परसों, अब इन इन एट्रीब्यूट आई नीड एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। एक जो है वो टारगेट बन जाता है और एक का वो पूरा बॉक्स प्लॉट बनता है, अगर जो बुलेट चार्ट किसी ने समझा हो जो लास्ट टाइम आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से 2 वेरिएबल्स हैं जिनका बुलेट चार्ट लेना जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल होता है? प्रॉफिट, चलो प्रॉफिट, और प्रॉफिट और सेल्स, व्हाट डू यू थिंक? क्वांटिटी और सेल्स? नहीं नहीं नहीं, वो बुलेट से किस तरह कंपेयर, प्रॉफिट और सेल्स का फर्क पड़ता है कि आपकी सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना था। तो पहले इसको करके हाँ हाँ, पहले जो डिफॉल्ट हो सकता है, पहले डिफॉल्ट सेटिंग करके देख लेते हैं कि डिफॉल्ट सेटिंग में वो क्या दे रहा है। सो दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग हेयर। प्रॉफिट का क्या बता रहा है? हाँ, सेल्स प्रॉफिट के हिसाब से कितनी आ रही है, अगर मैं इसको फ्लिप करूं, नहीं ये फ्लिप पे नहीं आ रहा, ये सही है। तो प्रॉफिट मेरा टोटल, मैं टर्म टोटल प्रॉफिट सही है, कैन आई टेक टोटल प्रॉफिट या आई हैव टू टेक द एवरेज? टोटल प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स मेक सेंस, राइट? ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो मेरा हुआ है अक्रॉस ऑल द टाइम पीरियड्स वो 286,397 डॉलर्स, विच इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द टोटल सेल्स। तो खैर प्रॉफिट और सेल्स इक्वेट तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें थोड़ा सा ये अंदाजा हो रहा है कि सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है और प्रॉफिट आपका इतना ज्यादा नहीं हो रहा उसके मुकाबले में। सो दैट्स बहुत कम है भाई। ये देखें ब्लू एरिया जो है ना, दैट रिप्रेजेंट्स योर एक्चुअल वैल्यू। अब ये जो डिविजन इसने बनाए हैं वो इसके, दैट रिप्रेजेंट्स हाउ फार यू आर फ्रॉम दिस। मतलब अगर आप टोटल सेल्स को देखें, चलें इसका परसेंटेज निकालें कितना बन रहा है ये, दैट्स लाइक 2.3 मिलियन, 2.3 मिलियन, और ये कितना है भाई? 0.3 मिलियन कर लें, 10%। सही है 10%, बहुत कम है। जो तिजारत करते हैं उनको उनको पता होगा ये 10% प्रॉफिट ना थोड़ा सा कम है। हाँ सही है, चले ठीक है, हो गया, डन होगी बात, ठीक है। अब आप इसको रीजन के क्रॉस डिफरेंट देखना चाहें तो ये रीजन के क्रॉस आ गए। ये वैसे एंटायर व्यू पे ना फिट हाइट इतना मजे का आएगा नहीं। अब रीजन के क्रॉस क्या पता चल रहा है आपको? वेस्ट रीजन का सबसे अच्छा आ रहा है, वेस्ट और ईस्ट बेहतर जा रहे हैं साउथ और सेंट्रल के मुकाबले में। हाँ लेकिन मतलब वो एक ही चार्ट है ना, इनका इनकी सेल्स भी ज्यादा हुई है और उसके मुकाबले मतलब रिलेटिवली हम बात करें, कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं बेसिकली। कंपैरेटिवली जो है ना वो परसेंटेज आप देख लें किसकी किससे ज्यादा है। साउथ का तो सेल्स ही कम हुई है, एक तो सेल्स का भी तो आपस में कंपैरिजन हो सकता है। तो साउथ की सेल्स सबसे कम हुई है और सबसे ज्यादा जो हुई है वो वेस्ट की हुई है। तो वेस्ट रीजन आई थिंक इज गुड। वेस्ट रीजन में कौन कौन से प्रोविंसेस आते हैं? लेट अस फॉर्म अ हायरार्की हियर। ओ, तो ये तो यार बहुत ज्यादा हो रहा है यार। हाँ, इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। तो रीजन को मैं यहाँ ड्रैग कर देता हूँ फिल्टर में। तो लेट अस टेक द सेंट्रल फर्स्ट, बल्कि जो मजे की चीज है वही पहले देख लेते हैं ना, अप्लाई। तो वेस्ट की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है,
ड्यू टू कैलिफोर्निया। हालांकि हमने कहते हैं कैलिफोर्निया में डिलेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, उसकी सेल सबसे ज्यादा है दूसरों के मुकाबले में। और ठीक है। और अगर हम उसको देखें साउथ, तो साउथ में ये उल्टी तरफ जा रहा है। व्हाट डज दैट मीन? अ लॉस, यस। हाँ, ये तो टेनेसी तो सबसे बेकार हो रहा है यार। नहीं, ये तो सेल्स इनकी बल्कि कम है, साउथ कैरोलिना। लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट, सेल्स कम है लेकिन प्रॉफिट में जा रही है। और फ्लोरिडा जो है, दैट्स अ वेरी फेमस स्टेट, बट दैट्स रनिंग इनटू अ लॉस इन दो 6 मंथ्स, जो कि हमने, बल्कि 6 मंथ्स का भी नहीं है, तो टोटल टाइम फ्रेम के लिए दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट आउटपुट जो कि आपको नजर आ सकती है। ठीक है, सो दैट्स नॉट गुड। ये उल्टा जा रहा है काम। एंड व्हाट अबाउट द ईस्ट? ईस्ट में भी ये पेंसिल्वेनिया, ओहायो लॉस में जा रहे हैं। अब देखें, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनका सेल्स कम है लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट खींच रहे हैं। सही है। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी सेल्स ज्यादा है लेकिन वो फिर भी लॉस में जा रहे हैं। हाँ, अभी अभी कर रहा था फ्लिकर, पता नहीं इसकी तबीयत खराब है थोड़ी सी। हाँ, नहीं, अब तो कोर्स खत्म होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता। फायदा है, अब देखें ये कट रहा है ना। हाँ, ये कट जाता है। ये देखें अब क्या, ये देखें, अभी तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, बातें नहीं प्लीज, अभी टाइम देखें बहुत कम है इस वक्त। सेंट्रल, सो आई थिंक वेस्ट इज द ओनली रीजन जिसके अंदर आपका लॉस नहीं जा रहा। वेस्ट रीजन में लॉस नहीं हो रहा, बाकी तीनों आपके रीजन में लॉस हो रहे हैं। और जो जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिसमें लॉस हो रहा है वो आप देख रहे हैं, इलिनॉय, टेक्सास, ओहायो, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा, टेनेसी टेनेसी वगैरह, ये सारी स्टेट्स आपकी फिलहाल लॉस में जा रही हैं। सो दैट्स अभी तो आपको अभी प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ना, फिर सेमेस्टर शुरू होगा। अभी आप जरा रुक जाएं, मेरे पास 2 डेटा सेट्स आ गए। ठीक है, बस सही, ठीक है हाँ बिल्कुल सही है। सही है, समझ में आ गई बात की। तो ये इस तरह का डेटा अगर आप इससे खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि आपको, दिस समथिंग रियली यूजफुल, जिससे आप वो सारे टारगेट्स वगैरह अचीव कर सकते हैं। व्हाट एल्स? हीट मैप्स। दिस इज द हीट मैप, दिस इज द हीट मैप। तो वन और मोर डायमेंशन एंड वन और टू मेजर्स। सो इसके अंदर हीट मैप्स में क्या था? ऑर्डर डेट, ड्रैग इट इनटू कॉलम्स, और डायमेंशंस तो हमारे पास यही है, सब कैटेगरी हो गया और शिपिंग मोड हो गया। ठीक है, नहीं, I'll just drag it here and then I'll just click on the profit. That's what I'm interested in. And now I have this heat map. So I'll just fill this up. हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। This is for the year, right? Sorry. हाँ, तो ये बेसिकली दिस इज द हीट मैप, और इसको अगर आप कलर करना चाहें तो कलर हम शिपिंग मोड के हिसाब से कर सकते हैं, राइट? तो ये दिस रिप्रेजेंट्स आपका जो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, किससे साल में हर मोड के लिए कितना हुआ है। सो दैट रिप्रेजेंट्स, और ये जो बॉक्सेस है यहाँ पे, ये आपको बता रहे हैं कि उसके साइजेस क्या हैं। ये यू कैन सी के द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर द फर्स्ट क्लास एंड द स्टैंडर्ड क्लास, एटलीस्ट इन 2021। और स्टैंडर्ड क्लास का तीनों सालों से इंक्रीज कर रहा है। 49 है, अच्छा 50 के थोड़ा सा कम हुआ है बल्कि। लेकिन सेम डे जो है वो इतने प्रॉफिट्स इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, और इसको हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं? शिपिंग मोड के क्रॉस कर सकते हैं, और द रीजन्स विच हैव बीन प्रॉफिटेबल। सो लेट्स ड्रैग द रीजन्स। ये क्या हो गया यार? अच्छा, शिपिंग मोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ ना। सो ये सही है। आप बताएं ये इसमें क्या हो रहा है? द बिगर बॉक्सेस, हाँ, द स्टैंडर्ड वाले जो है ना, जरा बिगर बॉक्सेस जा रहे हैं टोटल प्रॉफिट के हिसाब से।
So that's called the, अगर आप इसको break down कर लें इसके ऊपर, so नहीं, that's not very convenient. Just control and if you just remove this, तो ये primarily आपको by default cases पे this is what you call a heat map. तो this is better than the वो जो tree map बनता है ना, tree map खैर Tableau के अंदर भी है this one, लेकिन ये चीज जरा उससे जरा बेहतर और controlled environment के अंदर है, and you can color that using different क्या कहते हैं, I mean स्टेट से भी कलर कर सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होगा, कस्टमर आईडी से भी कलर्स कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो ये तो आप देखिए उसने हर एक का वो कर दिया है, और इसके अंदर क्या बता रहे हैं, 864 नेगेटिव्स आ रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट टेबलू आपको बता रहा है 864 नेगेटिव्स हैं। इसका क्या मतलब है, किस चीज के नेगेटिव है भाई? लॉसेस है ना ये, तो जस्ट क्लिक ऑन देम, लेकिन इट विल बी ओके, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन मैं कस्टमर नेम्स में असल में इंटरेस्टेड था। सो आई विल जस्ट पुट द रीजन हियर, ड्रैग द कस्टमर नेम हियर। हाँ, ये अब आपके कस्टमर नेम आ गए ओवर द डिफरेंट ईयर्स, एंटायर व्यू। अच्छा सॉरी, ये तो मेक इट मोर, लेट्स कीप इट दैट वे। हाँ, तो अब मैं को कैसे निकालूं कि ज्यादा प्रॉफिट वाले कौन से हैं? I have to search for the bigger boxes. So it seems कि every customer is generating the same amount of profit. क्या ख्याल है? नहीं, profit 14. How come we have this box size same? कैसे आ सकता है यार? So let me just see the profit with respect to the customer over the year. So let me just fit the width. हाँ ये, so size मैंने क्या बताया हुआ, sum of profit है ना ये। If I put that to average, maybe it will make some difference. नहीं, not any difference. So अब ये प्रॉफिट 2 माइनस 378, सो ये इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा क्योंकि नेगेटिव्स आ रहे हैं इसके अंदर। दिस इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। तो कस्टमर लेवल के ऊपर प्रॉफिट मुझे सही नहीं मिल रहा, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन, सो ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि प्रोबेबली डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि ये द स्मॉल पॉइंट्स रिप्रेजेंट अ लॉस एंड द बिगर पॉइंट्स रिप्रेजेंट दिस। तो डू यू सी एनी स्मॉल पॉइंट्स हियर? Let me just put that into the circles. So it's not able to distinguish based on the customer name. मुझे filter करना पड़ेगा इसको, वरना ये इसमें नजर आ जाना चाहिए यार। Why not? अच्छा, what if I इसको मैं अगर region based देखूं, sorry, बात है नहीं भाई। तो ये कितना प्रॉफिट बता रहा है? प्रॉफिट 1 and 13। सो इतना वो साइजेस का इतना फर्क नहीं पड़ा रीजन वाइज ना, और कस्टमर नेम तो खैर ये सारे वो आ रहे हैं। नहीं तो इस तरह भी, ये तो पागलपने का चार्ट है यार, इस तरह नहीं होगा। तो कस्टमर नेम इज समथिंग जो कि हमें किस तरह कर सकते हैं, या सो मेनी कस्टमर्स, हाउ कैन वी व्यू के हु इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर? हाँ, नहीं नहीं, क्लस्टर से नहीं होगा ये। इनफैक्ट आई हैव टू स्वैप देम हियर। हाँ, नहीं नहीं, कस्टमर के नाम जो है वो मैं किस तरह, कंडीशन आ रही थी जनरल में। हाँ, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेंज ऑफ वैल्यूज। टॉप ये आ गया ना, टॉप है, टॉप 10 बाय प्रॉफिट सम, ठीक है, ये आ गया, अप्लाई। तो अब क्या करना है?
हीट मैप में ओ सॉरी, शिपिंग मोड, ओके। सो कस्टमर नेम में टॉप 10 और कैटेगरी क्या रखनी थी भाई? प्रॉफिट है ना? प्रॉफिट सम अप्लाई कर दिया। सो ये प्रॉफिट के हिसाब से ऑलरेडी आपके पास वो आ गए, ये टॉप 10 है आपके। और ये इस तरह दिखा रहे हैं वो। और अगर आप इसको किसी और के क्रॉस रीजन के क्रॉस करना चाहते हैं तो आप रीजन के क्रॉस करके देख लें। नाउ इट्स गुड टू फिट द एंटायर व्यू। सो ये आपके टॉप 5 प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं जनाब, टॉप 10 सॉरी। एड्रियन और एंडी वगैरह जो भी हैं, कीथ, हंटर, रेमंड, संजित, सो दीज आर द टॉप 10 प्रॉफिटेबल कस्टमर जो क्या फिल्टर कर सकते हैं। और कौन कितना एक दूसरे के मुकाबले में दे रहा है, तो इट डज मेक सेंस। अगर हम बॉटम से देखें जो कि सबसे फजूल हैं, तो ये इनके सबके माई, अब ये नेगेटिव्स में आ रहे हैं सारे, आई थिंक सारे नेगेटिव्स में होंगे। हाँ लॉस है ना जिनकी, मतलब कस्टमर्स कैसे लॉस दे, हाँ कस्टमर जिनकी तरफ से लॉस हो रहा है, तो ठीक है इन पे केस कर दें आप। हाँ रिटर्न से भी हो सकता है, पेमेंट डिलेज हो रही है, इतनी डिले हो गई कि वो आपका फिजिकल पीरियड ही खत्म हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी देयर। हाँ ये भी होता है, ये बहुत खतरनाक चीज है बहरहाल। सो यहाँ पे ये, अब आप इसको क्रॉस आउट कर दें। और जो तीसरी हाईलाइट टेबल्स मैंने बता दी थी, हाईलाइट टेबल्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो यू हैव द रीजन, यू हैव द स्टेट्स, और अगेन आप इसको डिलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो हाईलाइट टेबल बना दे, तो ज्यादा जो डिलेज आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे हाईलाइट टेबल के अंदर नजर आ जाएंगे। और ये इतना मुझे का नहीं आ रहा। सो यू कैन हैव मोर लाइक, उसको आप प्रॉफिट के साथ भी देख लें और साथ में सेल्स भी डाल दें। तो ये आपका वो बता रहा है, तो खैर उसने डबल कर दिया उसको। तो हाईलाइट टेबल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो उनको वो कलर कर देता है। तो यू कैन हैव दिस, आप कलर स्कीम चाहें तो आप चेंज कर लें। तो यू कैन हैव दिस इज द ऑटोमेटिक वन, बट आई कैन हैव दिस लाइक द ट्रैफिक लाइट्स वन। कहाँ गया यार वो? ऑरेंज गोल्ड, ऑरेंज गोल्ड कैन बी गुड। हाँ दिस इज, अब आप देख रहे हैं कि ये आपको समझ में आ रही है कि क्या डिलेस किसके, ये तीनों की वैल्यूज कैसे सेम आ सकती है? डिले, प्रॉफिट, सेल्स, इनके सेम कैसे आ रहे हैं यार? दैट्स स्ट्रेंज। हाँ ये कुछ मेरे ख्याल में दिस इज नॉट गुड। सो लेट मी जस्ट क्रॉस इट आउट अगेन। तो क्या था हमारा? रीजन और स्टेट और डिलेज। तो इसका मतलब है कि मुझे उसको इकट्ठा करके नहीं देखना चाहिए। बहरहाल ये आ गया, ठीक है। एंड इफ आई जस्ट रिमूव दिस, आई थिंक ये डिफरेंट आएगा यार। 457,700, तो क्या था? प्रॉफिट। और प्रॉफिट को मैंने किस में ड्रैग करना है? टेक्स्ट में भी था। तो नाउ आई कैन सी इट इज डिफरेंट, तो मैं उसको सम ऑफ प्रॉफिट, तो यही था ना, दिस इज द हाईलाइट टेबल। तो ये इस तरह आप चीजें करके बता सकते हैं, प्रॉफिट लॉस किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली सारे ही कर लिए, वी हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ दीज। और अब हाँ ये लोकेशन के थोड़े से रह गए। तो इफ यू ड्रैग दिस स्टेट विच इज, आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफिक उसके ऊपर बना हुआ है, तो आप स्टेट को ड्रैग करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पकड़ लेगा इसको। और अगर आप इसके डिलेज देखना चाह रहे हैं, सो ये डिलेज उसको ले रहा है, लेकिन अब अगर आपने इसको ज्यादा अच्छे तरीके से देखना है तो ये वाला फिर आपको ज्यादा अच्छा बता देगा कि ज्यादा डिलेज किस स्टेट के अंदर आ रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं कि कैलिफोर्निया में डिले ज्यादा था। और यहाँ पर आप देखें टेक्सास के अंदर, और क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा वगैरह में डिले, फ्लोरिडा देखें वर्स्ट है क्योंकि डिलेज भी ज्यादा आ रहे हैं, लॉस में भी जा रहा है। तो इस तरह आप इकट्ठा कर, लॉसेस भी आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप प्रॉफिट भी इसमें ड्रैग करें तो प्रॉफिट में यहाँ किस में ड्रैग कर सकता हूँ भाई? साइज में ड्रैग करके देखूं? नहीं नहीं, लेबल। तो ये साथ में प्रॉफिट भी दिखा देगा। अब लेबल को आप ये कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। अलाउ लेबल्स टू ओवरलैप, नहीं ओवरलैप में बेकार हो जाएगा। और ये इसके अंदर अलाइनमेंट, ये आप देखने अलाइनमेंट, आप ये देखें ये अलाइनमेंट अब सारी आ रही है, तो सबको सेंट्रलाइज कर दें आप।
और यूं भी करके दिखा सकते हैं, यूं भी करके दिखा सकते हैं, ताकि वो ना रहे, ऑटोमेटिक ऑफ कर दें आप। सो दैट्स द अलाइनमेंट पार्ट। और यहाँ पर आप वो फॉन्ट साइज आप थोड़ा एक और कम कर दें, तो ताकि आप हर एक की आराम से जो है ना वो देख सकें। अच्छा, इसके अंदर एक और भी ऑप्शन होता है कि वो थाउजेंड्स में आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ना, मिन मैक्स, ये मिन मैक्स दिखा दिया या हाईलाइटेड दिखा दिया, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। मिन मैक्स देख लें। सो मैक्सिमम डिले किस में, प्रॉफिट किस में आ रहा है? हाँ, मैक्सिमम डिले जो है ना वो इसमें आ रहा है, कैलिफोर्निया में आ रहा है। और मिनिमम डिले नहीं, मिनिमम प्रॉफिट जो है ना यहाँ पर आ रहा है, टेक्सास के अंदर। तो बहरहाल ये दिस इज द ज्योग्राफिकल पार्ट अबाउट इट। और आप इसके अंदर शेप्स में भी डाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज द शेप्स हियर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट करूं और आई जस्ट यूज द शेप एज द सेल, टोटल सेल्स साइज। तो टोटल सेल्स बाय डिफॉल्ट साइज के हिसाब से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी आ गई इसके अंदर, लेकिन ये इतना आप देख रहे हैं, इतना मजे की चीज नहीं है ये। बेहतर है कि आप इसको इस हिसाब से कर लें और इसका ही आप वो कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करते रहें। टिपिकली इसकी सिलेक्शन ये होती है, लेकिन दिस इज जो आपका ऑरेंज गोल्ड है ना, दिस सीम्स बेटर। तो ये आपको जरा ज्यादा क्लैरिटी से क्लैरिटी करके दिखा देता है। अब मजीद यहाँ पे साइज में अगर डिस्काउंट साइज डालें आप, तो वो वापस दूसरी उस पर चेंज कर देगा। इसके अंदर आप साइजेस नहीं डाल सकते, इट हैज टू फिल अप द एरिया फॉर द होल स्टेट। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया। और अब उसके अलावा जो मेन चीज थी वो, लेट्स टेक दिस एज द ऑर्डर डेट और डिले। अब मैं डिले अगर फोरकास्ट करना चाह रहा हूँ, तो लेट मी टेक दिस एज द एरिया चार्ट। ये क्या बता रहा है आपको? आपका डिले जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो नाउ आई जस्ट वांट टू फोरकास्ट इट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो फोरकास्ट ये आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि फोरकास्ट इतना मजे का नहीं है। तो लेट मी, हाँ, ऑर्डर वॉर्डर का कोई डिले नहीं है। मैं एवरेज डिले निकाल लेता हूँ, और मैंने तो कोई डायमेंशन डाली नहीं है ना अभी। अच्छा, नो फॉर एवरेज डिले में फोरकास्ट आए। असल में डिले मैंने वेरिएबल खुद क्रिएट किया। आई ट्राई टू इम्प्रूव दिस फोरकास्ट इफ आई कैन। फोरकास्ट ऑप्शंस, क्या करें भाई? 1 ईयर का तो सही है। हाँ, क्वार्टरली करके देख लेते हैं, ये बात आपकी सही है। हाँ, तो शोइंग अ डिप, आई डोंट नो व्हाट शोइंग अ डिप, क्योंकि क्वार्टरली डिप आ रहे हैं, तो देखिए उसने एग्जैक्टली एक डिप फोरकास्ट कर दिया है, ठीक है। सो दैट्स ओके, we'll just define क्या कहते हैं, डिस्क्राइब द फोरकास्ट। सो आरएमएसई ज्यादा है, ठीक है, लेकिन लेट मी जस्ट चेक दिस, चेंज फ्रॉम इनिशियल टू 82, क्वालिटी इज गुड। अब उसने क्या दिया, क्वालिटी गुड है, लेकिन क्वालिटी आप एक्सीलेंट भी कर सकते हैं। तो आई डोंट नो, इसको मंथली लेवल पे करके देख लेते हैं। अब आप पता नहीं क्वालिटी सही कहेगा कि नहीं कहेगा। आमतौर पे हमें एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग जो है ना वो देख लेना चाहिए। क्वालिटी गुड ही कह रहा है वो। आरएमएसई थोड़ा कम हुआ है, तो सारे फोन आपकी क्लास में ही आते हैं मुझे। सो ये उसने बड़ा जबरदस्त वैसे फोरकास्ट किया है। दिस इज वेरी गुड। लेकिन ये हमने 1 महीने तक किया, 1 साल तक किया है। मंथली लेवल पे 1 साल तक करने का कोई तुक नहीं बनता। तो आप इसको एग्जैक्टली मंथ में कर लें आप। अगले 3 महीने का फोरकास्ट सही है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस, fill in missing values with 0, ignore the last, aggregate by months। सही है। तो दिस सिम्स ओके, थोड़ा सा डिप आएगा, और आई डोंट नो कि डिलेज का, तो द सेम थिंग यू कैन यूज फॉर दिस दूसरे जो फैक्टर्स हैं आपके, जैसे प्रॉफिट को कह लें आप। ठीक है, तो प्रॉफिट का आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, इसको हमें थोड़ा सा मंथली लेवल पे प्रॉफिट की फोरकास्ट सही नहीं आ रही, तो हमें क्वार्टरली लेवल के ऊपर बिल्कुल बेकार आ रही है, क्योंकि हमने उसको वो किया हुआ है। ये देखिए, अब इतनी तेजी से आप लोगों को अब मूव ऑन करना चाहिए, इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सब चीजें आप फटाफट फोरकास्ट कर सकें, देख सकें क्या है, कैसे करना है। अब जब तक आपका हैंड्स ऑन नहीं होगा तो क्या हो रहा है भाई ये? हाँ, अब तो आपस में, अच्छा डेटा सेट देंगे फिर सही है यार, मसला नहीं है, अल्लाह करे ऐसा ही हो।
बहरहाल ये बहुत अच्छा फोरकास्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब आखिरी जो चीज यहाँ पे हम दोबारा थोड़ा सा करके देख लेते हैं वो क्लस्टर की है। तो लेट्स से कि मैं टोटल प्रॉफिट के ऊपर क्लस्टर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आमतौर पे जस्ट इनिशियली फॉर्म 3 क्लस्टर्स। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 क्लस्टर्स में ना अब उसके क्लस्टर्स थोड़े से डिफरेंट किस्म के बन रहे हैं। तो एक जो क्लस्टर है वो मेरा बन रहा है जिसमें प्रॉफिट मेरा तकरीबन $12,000 का है। यहाँ पे $23,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे $26,000 का प्रॉफिट है। फोरकास्ट इसके ऊपर कंप्यूट हो नहीं सकती, तो आई जस्ट डू अवे विद दिस, ठीक है। सो ये जस्ट कस्टम पे शायद हो जाए, वो दोनों एडिटिव ले लेते हैं। नहीं करो, बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रिमूव दिस, ठीक है। सो यू कैन सी के हाउ द क्लस्टर्स आर चेंजिंग व्हेन यू चेंज दिस। तो ईयरली लेवल पे अगर आप क्लस्टर बना लें व्हिच मेक्स, तो इट मींस नथिंग। सो कम से कम क्वार्टरली लेवल पे चाहिए। ऑर्डर डेट की अगर आप हिसाब से करें तो क्वार्टरली लेवल के ऊपर आप ये क्लस्टर्स बना सकते हैं, सही है। तो इट रियली इट शोज यू के जो रीसेंट आपके पीरियड्स हैं 2020 से 21 तक के, उनका जो एक क्लस्टर बन रहे हैं सेंट्रल जो एवरेज वैल्यू है प्रॉफिट की, क्योंकि क्लस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रल वैल्यू, वो सबसे ज्यादा है। तो रिसेंटली यू हैव बीन मेकिंग लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स। और जो उसके पिछला टाइम पीरियड था, यानी काफी लंबा चौड़ा 2018 से 2 साल का, उसमें आपने कदरे कम किया है। और बाकी जो है ना वो आपने, तो अब यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ परसेंटेज चेंज। अगर मैं कंट्रोल से तो उनको किया है, 2 items selected, so I can create a set here, add to the filter shelf। ये इसको अभी फिलहाल मुझे करने, मैं ये चाह रहा था कि यहाँ से यहाँ पे मेरा परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ है, परसेंटेज चेंज, ये कैसे डिटरमिन होगा। एक्सपोर्ट ऑल, तो ये आई थिंक विल हैव टू कंप्यूट द परसेंटेज चेंज फ्रॉम दिस क्लस्टर टू दिस क्लस्टर। इस क्लस्टर को पहले मुझे सेव करना पड़ेगा कहीं। What can I do here? I can create a set for this 2019 Q4, जो कि मेरा आई थिंक यहाँ पे सेट आ जाएगा वो। ये एक सेट आ गया, देखिए ये, you can see this is the set variable and I can create another set for this one। So this is 2019 Q3 and this is another set for this one 2018 Q3। ये रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है। So basically जो रिप्रेजेंटेटिव जो मेरे हैं, जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव डेटा डेट पॉइंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेट पॉइंट्स वो कौन कौन से हैं? 2019 का Q3 जिसपे सेकंड क्लस्टर बेस्ड है, फिर 2019 का Q4 जिसपे मेरा आखिरी क्लस्टर बेस्ड है, और 2018 का Q3। तो ये मेरे रिप्रेजेंटेटिव क्वार्टर्स हैं जिसके अंदर मेरे, आप कह सकते हैं कि मैं अपने पूरे डेटा के प्रॉफिट्स को वो कर सकता हूँ, समराइज कर सकता हूँ। ये 3 मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है। तो मुझे शुरू से लेने की उसकी जरूरत नहीं। बहरहाल अगर मैं ये सेट यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आई डोंट नो कि ये इन एंड आउट, जब मैं दाखिल हुआ उसके अंदर और जब मैं बाहर निकला, तो ये इतना मेरा क्या था, डिले इतना आ रहा था, डिले बढ़ गया। समझ में आ रही? अब मैंने सेट जब क्रिएट कर दिए तो अब मैं उस सेट के क्रॉस दूसरी चीजें एनालाइज कर सकता हूँ। देखिए ये इस तरह की फैसिलिटीज अब आपके पास पावर बीआई में नहीं है। पावर बीआई का एक बड़ा रफ किस्म का यूजेज है। देखिए प्रोफेशनल एक काम है कि मैंने 3 क्लस्टर बनाए, मैंने 3 क्लस्टर के सेंटर्स को स्टोर कर दिया, अब वो उसके मैंने सेट्स बना दिए। अब सेट्स के क्रॉस में दूसरे सेट्स को मैं एज अ पैरामीटर यूज करके मैं दूसरी चीजों का एनालाइज कर पा रहा हूँ, सही है। इसी तरह इसके अंदर आप नीचे पैरामीटर्स भी बना सकते हैं, नए कॉलम्स बना सकते हैं, सेट्स बना सकते हैं। सो इट गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। सो दैट बेसिकली फिनिशेस दिस स्टफ। और इसमें जो आखिरी जो चीज थी वो ये जो पीपल का हमने देखा था, तो मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप देखें रीजन, ये दूसरी शीट जो थी, ये रीजनल मैनेजर्स हैं, फ्रेड एंड सैडी वगैरह। अब इसके अंदर अगर मैं डिले देखूं या प्रॉफिट देखूं, तो आई कैन हैव द प्रॉफिट
तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास सम ऑफ प्रॉफिट इनके क्रॉस आ रहा है, वो खुद ही लिंक कर रहा है आपस में, उसने ऑटोमेटिक मेरे ख्याल में पीछे से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ, मैं बार चार्ट भी देख सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है, बबल्स भी देख सकता हूँ, बिकॉज़ जस्ट गॉट 4 पीपल, आई कैन फॉर्म द बबल्स हियर एंड इट डज नॉट मेक सेंस, और आई कैन व्यू दिस सर्कल्स, लेकिन सर्कल्स में इतना हीट मैप भी चल जाएगा इसके अंदर, सही है। तो इस तरह वो शीट्स आपस में वो लिंक कर लेगा। सिमिलरली अगर आप ये देखें ऑर्डर रिटर्न्स कितने हुए हैं, तो ये मुझे बेसिकली काउंट करना पड़ेगा रिटर्न्स। ये मैंने काउंट को दबा दिया था, रिटर्न्स काउंट दबाया मैंने यहाँ पे, जो कि बाय डिफॉल्ट एक मेजर अवेलेबल होता है बीआई टूल्स में ना। ये काउंट का मैंने यहाँ क्लिक किया, आई डोंट हैव अ मेजर है, आई जस्ट वांट टू काउंट कि यस कितने हर उसके लिए ऑर्डर के लिए, तो रिटर्न्स काउंट कर दिए। तो जिसके ज्यादा, मैं इसको इसको अब मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, आई नीड टू सॉर्ट दिस। कैसे सॉर्ट करें इसको बताएं। हाँ तो इसको सॉर्ट क्या करना है ये देख लेते हैं ना इसको। हाँ ऊपर से हो जाएगा, सही बात है, ठीक है यार। ये राइट दिस वन, तो ये ऑर्डर्स के मैक्सिमम है और कुछ के जीरो भी होंगे। नहीं, रिटर्न्स कम से कम एक, या जिनका रिटर्न हुआ है वो बता रहा है मेरे ख्याल में, जीत नहीं जीरो, हर एक कोई ना कोई ऑर्डर एक दफा तो कम से कम रिटर्न हुआ ही है, तो मैक्सिमम जो रिटर्न हुए हैं वो ये है। अब ये ऑर्डर किसने दिया था, कैसे निकालेंगे ये ऑर्डर किसने दिया था, कस्टमर नेम, तो कहाँ डालें कस्टमर नेम को, अब ये विलियम है, पता नहीं 14 था ना, ये सेठ भाई, सेथ वेरनॉन, सेथ वेरनॉन है जिसने वो दिया था। थोड़ा सा वो हो, अच्छा यार इसमें कोई चार्ट कर लेते हैं, क्या कर रहा हूँ यार। हाँ ये आ गया ना, यस, ये तो खैर पागलपने वाला चार्ट है, लेकिन अब क्या करें यार। सेथ वेरनॉन 14 है, विलियम ब्राउन 11 है। अब ये देखिए यहाँ से आपको ऑर्डर जिन्होंने रिटर्न किए वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता। अब आप सेथ वेरनॉन को अलग करें और अलग से आप एनालिसिस कर लें इसका, ठीक है। So that basically finishes everything about Tableau, और now you should be able to in a position कि आप दोनों tools के ऊपर आपका hands on extreme level के ऊपर हो जाना चाहिए, ताकि आपके projects के अंदर आपका जो है ना वो काम हो सके। वैसे में बड़ा जबरदस्त आइडिया आया अभी, वो ये कि मैं सोच रहा हूँ फाइनल एग्जाम भी हैंड्स ऑन कर लूँ आप लोगों का, ऑनलाइन इधर क्लास में 3 घंटे के अंदर अंदर। 3 घंटे में हो जाएगा, जो जितना 3 घंटे में करेगा वो उतना, क्योंकि ये तो मुझे, मैं क्या पूछूंगा आपसे फाइनल एग्जाम के अंदर। अच्छा ठीक है, सही है।